तो आज हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसका चैप्टर पढ़ेंगे नेशनल एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। National Acquired Respiratory Infection Control Program was taken up as a pilot project in 2025 selected districts in India during the year 1990 and to expand in a phases manner later. During 1992 to 1993, this program was included as one of the components of Child Survival and Safe Motherhood program, which is now upgraded as Reproductive and Child Health program. Then comes to the second is the incidence and prevalence rate. According to 2019 to 2020 National Family Health Survey, the prevalence of ARI in India is 2.4% in urban area and 3.8% in rural area. In 2021 had approximately 1.1 million ARI cases. According to WHO, ARI are responsible for almost 20% of all death in children under 5 years old worldwide. In 2018, the National Health Portal of India reported 41,09,96,260 cases and 3,740 deaths from respiratory infection across India. So next is the objectives: to reduce the morbidity and mortality due to ARI pneumonia among under 5, to avoid delay in getting the treatment of those cases of the ARI requiring hospitalization, to reduce the number of cases needing hospitalization admission, that is by the correct ARI cases management at home. Then comes to the definition. The Government of India ARI control program seeks to reduce pneumonia-related mortality in children under 5 years, standards clinical assessment, and rationalize the use of the drugs in case management. Strategy. The strategy of ARI control includes standard case management by the health worker, education of the mother to treat cases, home remedies, education of the mother to recognize fast and difficulty breathing early, sustain high recovery with immunization, especially reduction of inappropriate use of antibiotic in treating ARI. तो ये सब स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करेंगे, इसके थ्रू हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे. नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है मीजल्स, डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड बेसिलस कैलमेंट वैक्सीन लेना है. सर्वाइलेंस ऑफ न्यूमोनिया केसेस, डेथ, ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ वर्कर्स टू असेस चिल्ड्रन विथ कफ एंड कोल्ड, इनिशिएट करेक्ट केस मैनेजमेंट, गिव एडवाइस टू पेरेंट्स फॉर होम केयर, शाउट टू इंट्रोडक्शन सिग्निफिकेंस प्रोटोकॉल फॉर केसेस मैनेजमेंट ऑफ द न्यूमोनिया विथ कोट्राइमोक्साजोल. देन नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. फर्स्ट सेटअप ये इसमें नेशनल लेवल में सेटअप होगा, स्टेट लेवल में होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, और BCH मतलब प्राइमरी PCH में होगा, क्रॉस रूट लेवल में होगा. तो नेशनल होगा डेप्यूटी कमिश्नर, स्टेट में होगा स्टेट मैटरनल एंड चाइल्ड एंड एक्वायर्ड. Then come to the acquired respiratory tract infection. ARI means an infection of any part of respiratory tract of less than 30 days duration. Expect otitis media, which is of less than 14 days, classified as upper respiratory tract, included common cold, pharyngitis, laryngitis, tracheitis, epiglottitis, and otitis. Acquired lower respiratory infection included bronchitis, bronchitis, and pneumonia. ARI is almost common cases of the morbidity and mortality in children under the age of 5 years. तो जो अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स है, इसमें मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का सबसे ज़्यादा केस क्या है, जो 5 मतलब अंडर 5 एज जो चिल्ड्रन होता है उसमें मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी हो जाता है एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, विदाउट एडुकेट ट्रीटमेंट. तो चाइल्ड में भी डाई, अगर हम लोग एडुकेट ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो चाइल्ड डाई मतलब डेथ हो सकता है विदिन 4 to 7 days. क्या हो सकता है हॉस्पिटल जो चाइल्ड इन एन अर्बन एरिया सफर्स फ्रॉम 5 to 9 episode of the respiratory infection annually during first 5 years of life, each episode lasting for mean duration of 7 to 9 days. And this is the image of the case of death of the children under 5. तो 2000 to 2003 में कितना हुआ है, एंड ये मैप बेसिस
इमेज है जिससे तो हम लोग जान पाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। देन साइन सिम्टम, तो साइन सिम्टम में 3 टाइप का होता है, नो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया एंड सीवियर न्यूमोनिया। तो नो न्यूमोनिया में क्या होता है, ना काफ, नो फास्ट ब्रीथिंग, नो चेस्ट इन ड्राइंग। और न्यूमोनिया में क्या होता है, काफ, फास्ट ब्रीथिंग बट नो चेस्ट इन ड्राइंग। सीवियर न्यूमोनिया क्या होता है, फास्ट ब्रीथिंग होता है। तो ये साइन सिम्टम देख के हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं न्यूमोनिया, मतलब जो बच्चे का न्यूमोनिया हुआ है वो कितने कौन से लेवल पे है। नेक्स्ट होता है एज के अकॉर्डिंग हो सकता है 2 to 12 मंथ ऑफ द एज इज़ 5 breath per minute और मोर, 12 to 16 मंथ ऑफ द एज 14 breaths per minute। चेस्ट इन ड्राइंग, लेथर्जी, एक्सेसिव ड्राउजीनेस होगा, साइनोसिस होगा, कन्वल्सन होगा, सीवियर मेल न्यूट्रिशन होगा, हाइपोथर्मिया होगा। ये सब साइन सिम्टम्स है जिसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते थे नर्स स्टूडेंट। ऐसे हेल्थ स्टेटस हम लोग हेल्थ स्टेटस एसेस कर सकते हैं। एज ए नर्स हम लोगों का रोल है हेल्थ स्टेटस करना, जैसे पेशेंट का हेल्थ, फिजिकल एंड ये हिस्ट्री लेना, ऑब्जर्व फास्ट ब्रीथिंग, फियर फॉर नो न्यूमोनिया, नो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अगर न्यूमोनिया है तो ट्रॉक्सिमाजोल जो एंटीबायोटिक को देना है। और सीवियर न्यूमोनिया है तो रेफरल चाइल्ड हॉस्पिटल विथ फैसिलिटीज़ ऑफ ऑक्सीजन आर अवेलेबल, स्टार्ट एंटीबायोटिक एंड ऑक्सीजन थेरापी। देन इसे अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज, दिस इज़ द मेडिकेशन चार्ट। तो हम लोग कितना मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, ये हम लोगों का मेडिकेशन चार्ट है जिसके थ्रू हम लोग मतलब टेबलेट्स देना है तो कितना देना है और सिरप देना है तो कितना देना है, ये हम लोगों को डिटेक्ट करना है इस चार्ट के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट को देख के मतलब हम लोगों को आइडिया होगा कि मतलब ये अगर बच्चे मतलब इतना एज है और इतने वेट में है तो इसको कि अगर टेबलेट्स दे तो कितना डोज का दे और अगर सिरप दे तो कितने डोज का दे, तो क्या हम लोगों को माइंड में रखना है। तो अगर हम लोग should not given to premature babies and in case of the neonatal jaundice, the tablets should be crushed and mixed with water. The mixture should be given to the child with a spoon. Provide cotrimoxazole tablet for 48 hours and then recheck the condition. If improvement is seen, then continue up to 5 days. ये सब हम लोग को माइंड में रखना है। देन क्या करेंगे, एडवाइस प्रोवाइड टू द मदर, कंटिन्यू फीडिंग एज बिफोर। इफ द चाइल्ड अनविलिंग टू टेक फूड देन गिव स्मॉल क्वांटिटीज फ्रीक्वेंटली। इफ ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड देन कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, गिव सफिशिएंट फ्लूइड orally, give paracetamol for fever, clean the nose with normal saline drops. If nose is blocked with mucus secretion, don't take medication nasal drops which may be harmful. For cough and cold, give honey, tulsi, etc. but do not give to the baby below 2 years. तो आज हमारे टॉपिक था जो नेशनल एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ट्रैकिंग फिक्सिंग प्रोग्राम, तो उसमें कंक्लूजन बस यही था हमारा टॉपिक। तो थैंक यू, आते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सब्सक्राइब कर देना।